روزگار یہ بے روزگاری ونکین پیکس پہ پڑھت لکھت بہت پانہ ونکین MA BEd لڑکہ بہت ونکین موزوری کران پان مے MA BEd پانس ونکین بہت پان ونکین موزوری کران. ہر اعتبار سے اس سۭتۍ زیادتی گژھان ظلم گژھان اس یژھان کہ اس سۭتۍ گوٚژھ انصاف گژھُن. ہمارا تو مین اکانومی کی جو بیک بون ہے دیٹس ہارٹیکلچر انڈسٹری, بالکل ایگریکلچر. اور اگر ہم اسی کو ختم کر دیں, اسی میں ہائی وے ریلوے یہ بناتے رہیں تو یہ تو ہماری بیک بون ہی ختم ہو جائے گی, ہم تو بھکاری بن جائیں گے نا بعد میں. مسئلہ لاسٹس یوتُے کہ وۄنۍ گژھن نہٕ بیٚیہِ چھیڑٕنۍ یتھ کِہیٖنۍ. نہ کہیں ظلم. ہماری تو یہی آمدنی ہے اس ایریا میں, ویجیٹیبلز بناتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے یہاں جموں کشمیر میں سب سے زیادہ ویجیٹیبل کا ایریا جو ہے وہ بگام بٹ پورہ ہے. تو اسی طرح ہارٹیکلچر بھی آگے بچرو میں یا ادھر کھندا میں تو کافی نقصان دہ ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا یہ کافی نقصان دہ ہوگا. سری نگر کے سیمی رنگ روڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں, اور جیسا کہ آپ سب جو لوگ اس بات سے واقف ہوں گے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ رنگ روڈ نے کئی ساری آسائش تو پیدا کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی ساری مشکلات کا جو ہے سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹروورسی کا شکار ہے نہ صرف یہ رنگ روڈ بلکہ حال ہی میں جو سیٹلائٹ ٹاؤن شپ جس کا ذکر کئی جگہوں پہ دیکھنے کو ملا, اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو جو ہے ہائی لائٹ ہوا. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ, جو کہ ایک پرومیننٹ ایکٹیوسٹ ہیں. آپ انہیں RTI مظفر کے نام سے بھی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ہر ایک چیز میں جو ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس چیز کو صحیح پکچر کر کے سامنے لے آتے ہیں. ان سے اس رنگ روڈ کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ بہت شکریہ. سب سے پہلے اس رنگ روڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ رنگ روڈ جو ہے اس سے کئی ساری آسائش بھی ہوئی ہوں گی لوگوں کو جو آس پاس کے ریزیڈنٹ ہیں, لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں 5-7 ہزار کنال زمین جو ہے کشمیر کی, ان 5 ڈسٹرکٹس کی, وہ بھی اس کی زد میں آئی ہے. تو کتنے نقصان ہیں اور کتنے فائدے ہیں اس رنگ روڈ کے؟ دیکھیں, جب کوئی سڑک بنتی ہے, کوئی ہائی وے بنتی ہے, اس سے عوام کو فائدہ ملتا ہی ہے, یہ تو ضروری ہے کیونکہ اس سے ٹرانسپورٹیشن میں آسائش ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, ٹورزم یہاں پہ ہے, باقی ہے فوجی گاڑیوں کی موومنٹ ہے, تو اس حساب سے جو ہے لوگوں کو آسائش بھی ہوتی ہے. مگر چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے لاز ہماری پارلیمنٹ نے بنائے ہیں کہ ہر کسی چیز کے لیے لا ہے, اور ایسا ہی جو ہے حصولی اراضی کے لیے بھی لا ہے, لینڈ ایکویزیشن جسے کہا جاتا ہے, اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست لا بنا 2013 کے اندر. اور اس لا میں لکھا ہے کہ یہ جو ایک لینڈ ایکویزیشن کی پروسیس ہے, جب بھی کوئی زمین چاہے ہائی وے ہو, ریلوے ہو, ڈیم ہو, اس کے لیے لی جائے گی, اس کے لیے حاصل کی جائے گی, اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوگی. پہلے یہ لا ایسے نہیں تھے ہمارے پاس. پہلے جو لاز تھے انگریزوں کے ٹائم بنے تھے 1894 میں, 1894 میں لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894, اس میں جابرانہ ہوتا تھا, وہ اوبسلیٹ لاز تھے, وہ کولونیل لاز تھے. اس میں سولیشم کا پروویژن تھا, محض 15% زبردستی زمین لیتے تھے, کوئی پوچھتے نہیں تھے, کیا نہیں کرتے تھے, پھر تھوڑا سا معاوضہ دیتے تھے. مگر پھر سرکاروں کو پتہ چلا, لیڈرز کو پتہ چلا, in their supreme wisdom they enacted this fair compensation act in 2013. مگر جموں کشمیر میں وہ پرانا ہی لا چلتا تھا جو 1894 والا لا تھا, اسی طرز پہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1934 میں JNK میں لا بنایا تھا. اچھا, 1894 کے لا کی طرز پہ تقریباً اس کی ہی کاربن کاپی سمجھ لیجیے, بٹ نام تھا JNK لینڈ ایکویزیشن ایکٹ سموات 1990 جو 1934 ہوتا ہے. تو اس میں بھی 15% جابرانہ, اس میں معمولی سا, بٹ اس میں وہ چیزیں نہیں تھی. بٹ سینٹرل کے لا میں بہت اچھی چیزیں ہیں. تو اگر کہیں پہ زمین جاتی ہے کسی پروجیکٹ کے لیے, کسی ہائی وے کے لیے, کسی ریلوے کے لیے, اس میں عوام کو اس طریقے کا فیئر کمپنسیشن ملنا چاہیے, عوام سے پوچھا جانا چاہیے, پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, سوشل امپیکٹ اسیسمنٹ ہونا چاہیے, ہر کوئی چیز, جیسے پھر اگر اللہ صاحب نے کہا پارلیمنٹ کے اندر. مگر یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوئی, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ جب یہ لینڈ ایکوائر ہوئی اس ٹائم آرٹیکل 37 ٹوٹ چکا تھا. اس ٹائم آلریڈی سینٹر کے لاز آ چکے تھے اور فیئر کمپنسیشن ایکٹ بھی اس ٹائم یہاں پہ لاگو تھا. مگر جو نوٹیفیکیشن انہوں نے نکالی تھی پرانے قانون میں نکالی تھی, وہ لیپس ہو چکی تھی ودن 2 years, اور انہوں نے 3 سال کے بعد اسی لیپسڈ قانون کے اندر یہ لینڈ ایکوائر کی, لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, جبر کیا,
और ये लैंड ले ली, हाईवे तो बनी, लोगों को आसाइश तो होगी, बट जो उसमें इफेक्टेड लोग हैं, किसान हैं, उन पे तो बिल्कुल जख्म अभी भी उनके ताज़ा हैं। और डिक्लेरेशन के 2 साल के अंदर अंदर जो है मुआवजा मिल जाना चाहिए, अगर वो ना मिला तो एक नई नोटिफिकेशन सामने आती Exactly. है, और वो कश्मीर में नहीं हुआ। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि कई सारे लोग जो अवेयर लोग हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है, तो क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है कि इनका मुआवजा आने वाले वक्त में बढ़ सकता है? देखिए, इसमें जो ये लीगल फ्रॉड जो हुई यहाँ पे, खासकर अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें या बाकी अजला की बात करें, नोटिफिकेशन निकली 18 में मिसाल के तौर पर, दैट मीन्स बाई 2020 दे शुड हैव गॉट द कंपनसेशन, 20 में भी नहीं मिला उनको। जो है कहीं कहीं 19 में नोटिफिकेशन निकली तो 21 में मुआवजा मिलना था, बट वैसा नहीं हुआ, और उनको मुआवजा मिला 22 के बाद, और डिक्लेरेशन निकली थी उसके 3 साल के बाद उन्हें अवार्ड बनाए, जो कि एक गलत चीज़ था। अब 1 साल के बाद, 1 दिन के बाद भी, 1 साल के बाद अगर 1 दिन हो, 2 साल के बाद अगर 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, उसके बाद भी अवार्ड नहीं बना सकते हैं, वो इलीगल है। तमाम लैंड एक्विजिशन एक्ट में, चाहे 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर का 1934 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट है, संवाद 1990, या राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट आज का है। मगर यहाँ पे 3 साल, 3.25 साल बाद, 3.5 साल के बाद उन्होंने अवार्ड्स बनाए, लोग हाई कोर्ट्स में गए, हाई कोर्ट्स बाद में उनने जजमेंट्स दे दी, बीच में स्टे भी किया, फिर उन्होंने बोला कि 30-40% और दे दो, अब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अच्छा फैसला देगा, और जो जितने भी एग्रीवेड लोग हैं रिंग रोड के आजू बाजू जिनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई, उनको मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट से कि उनको इंसाफ मिलेगा। जो रिंग रोड है ये शुरू होता है, जो हमारी नई हाईवे आप देखते हैं जो लसजन से फिर आगे पामपुर की तरफ जाती है गलंदर से, वहाँ पे आपने देखा होगा एक जगह पे फ्लाईओवर टाइप का बन रहा है, वहाँ पे कट है इसका, वहाँ से निकलेगी ये और ये आगे चलेगी, वहाँ से ही डिस्ट्रिक्ट बडगाम स्टार्ट होता है। वो पामपुर का एरिया वहाँ पे थोड़ा सा है, पुलवामा का एक गांव है खदरमू, वहाँ पे खदरमू के बाद पोहरू में जाएगी, फिर ये आगे बिल्कुल बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बडगाम डिस्ट्रिक्ट है। आगे फिर ये जाती है बडगाम के चौडरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके बाद चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके बाद बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, कुछ एरिया बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसके बाद कुछ एरिया फिर आपका वहाँ से जाएगा श्रीनगर का जो आउटस्कर्ट्स के एरिया है, चाहे हमारा शाल्टिंग तहसील है, रणबीरगढ़, प्रतापगढ़, वहाँ से निकलेगी, वहाँ से फिर जाएगी सराय डांगरपुरा जो कि आपके बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 80% लैंड गई। हमारा तो मेन इकोनॉमी की जो बैकबोन है दैट्स हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, बिल्कुल एग्रीकल्चर, और अगर हम इसी को ख़त्म कर दें, इसी में हाईवे रेलवे ये बनाते रहें, तो ये तो हमारी बैकबोन ही ख़त्म हो जाएगी, हम तो भिखारी बन जाएंगे ना बाद में। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब हैं, या हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जावेद राना साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा दे शुड इंटरवीन इनटू दिस। तो ये हमारे ओवरऑल जो हाईवेज है उनके हिसाब से, और उसमें भी तकरीबन जितना वो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उसमें भी जाएगी, जिसमें आपने एग्रीकल्चर लैंड भी कहा, और साथ ही साथ हमारी फॉरेस्ट लैंड जो है वो भी एक्वायर की जाएगी। एक और जो हाईवे है या एक और जो बहुत बड़ा रोड का प्रोजेक्ट है वो जो है हमारा पुंछ रजौरी से होते हुए बारामूला को कनेक्ट कर रहा है, और वो इससे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी वो एक अलग हाईवे बनाया जा रहा है, और वो बहुत बड़ा हाईवे है, यानी आपके जम्मू प्रोविंस को, एक जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट को कश्मीर के एक एंड के डिस्ट्रिक्ट के साथ कहीं जाके जोड़ रहा है, और काफ़ी 33,000 करोड़ के आसपास का शायद वो प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट में एक तो यहाँ हमारी 7 से 8,000 कनाल ज़मीन चली गई, उस प्रोजेक्ट में कितनी ज़मीन जो है वो ख़तरे में है, और जैसा हमने सुना है कि कई सारे जो हमारे जंगल है, हमारी जो नदी नाले हैं वो उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड क्या हो सकता है उससे? वो तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी, क्योंकि आज मैंने जो है ग्रेटर कश्मीर में लिखा था आर्टिकल, उस पर मैंने एक्सप्लेन करके, उससे पहले भी लिखा था मैंने, पूरा उसमें दिखा था कि कितनी हमारी लैंड होल्डिंग है, कितनी। देखिए ये हाईवे शुरू होगी राजौरी से, फिर जाके पूंछ जो नॉर्मल रोड है उसको थोड़ा वाइड करेंगे, सुरनकोट तक ही वाइड करेंगे, फिर आगे जाएगी ये जी बफलियाज से वही जो हमारा पीर की गली का मुगल रोड को उसी को वाइड थोड़ा करेंगे, आगे जो नॉर्मली रोड शुपियाँ से पहले ये लेफ़्ट को निकलेगा टुवर्ड, जब हम वहाँ से आएंगे लेफ़्ट टुवर्ड्स वेस्ट हम बोल सकते हैं, ये केलर से जाएगी। अच्छा, केलर से शादीमर्ग, अबहामा, अगलर, द्रबगाम, चारीपोरा, पखरपोरा, फुटलीपोरा, यूसमर्ग, दूधपथरी, ये पहले जितना बेल्ट तारी शरीफ तक है अपर पखरपोरा, ये सब फ्रूट बेल्ट है, सारे का सारा फ्रूट बेल्ट है, सब अगलर है, द्रबगाम है, शादीमर्ग है,
केलर है, मोशवारा है, ये सब फ्रूट बेल्ट है और हाई क्वालिटी का फ्रूट। और जो हमारी गुजर बकरवाल पॉपुलेशन है, पेस्टोरिस्ट कम्युनिटी है, चौपान है, गुजर है, बकरवाल है, उनकी तो वो चरागाहें हैं, उनकी तो मीडोज़ हैं, वो तो अपना लाइवलीहुड उसी पे कमाते हैं। उन मीडोज़ में से ही कटाई होगी, उन मीडोज़, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, वो मूव नहीं कर सकेंगे, उनके मीडोज़ ख़त्म हो जाएंगे। और जो आप बात करते हैं कश्मीर के टूरिज़्म की, टूरिस्ट तो इन्हीं इलाकों में आते हैं, दूध पथरी ये, तो कौन आएगा जब वहाँ ट्रक्स होंगी, गाड़ियाँ होंगी, शोर शराबा होगा, कल को हाईवे होगी, धुआं उठेगा, पोल्यूशन हो जाएगा, तो अगले 5 या 10 साल में कश्मीर कौन आएगा जब यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे भी कंक्रीट जंगल होगा, यहाँ पे कॉलोनी होगी, यहाँ पे कॉलोनी होगी, यहाँ पे फैक्ट्री होगी, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे हाईवे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये हाईवे से इमिशन होगा, कार्बन इमिशन कितना होगा, वहाँ पे नज़दीक पीर पंजाल के ग्लेशियर पिघलेंगे जल्दी से, ऑलरेडी हमारे पोल्यूट हो जाएंगे, तो इट विल बी एन एनवायरमेंटल डिजास्टर। अभी जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, बर्निंग इशू जिसे हम कहें, अब ये हाईवे तो बन गया, ये रिंग रोड तो बन गया, सेमी रिंग रोड जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बताया गया कि आपकी सैटेलाइट कॉलोनीज बनेगी, यानी इसके बिल्कुल अगल बगल में जो है कॉलोनीज बनेगी, और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। कि जो वो नोटिफिकेशन आई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमारी जो इसके बिल्कुल साथ, जैसा हम अभी भी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़मीनें हैं और सारी की सारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ भी वो लोग कुछ नहीं बना सकते हैं, बल्कि सरकार आके कॉलोनीज़ बनाएगी, और कॉलोनीज़ जो है किन के लिए बनेगी वो भी वाज़ेह नहीं किया गया है। तो इस प्रोसेस में कितनी ज़मीन जो है वो एक्वायर हो जाएगी, और वो कॉलोनीज़ का क्या कुछ कंसेप्ट है कि उन कॉलोनीज़ में किन को बसाया जाएगा। ये जो श्रीनगर रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट बना, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैक्सिमम 7000 कनाल ज़मीन गई होगी हाईवे से। और जो सैटेलाइट कॉलोनियाँ बनेंगी, जो सरकार का डॉक्यूमेंट है, जो मैंने देखा, 30 टाउनशिप्स बनाने हैं। एक टाउनशिप बनेगा 200 हेक्टेयर का, दैट मीन्स 4000 कनाल, 200 हेक्टेयर होते हैं 4000 कनाल, और 30 टाउनशिप होते हैं 1,20,000 कनाल। तो इस पे हमको खाली 7000 कनाल गई ज़मीन, और टाउनशिप पे हमारी जाएगी 1,20,000 कनाल की ज़मीन। ये सैटेलाइट टाउनशिप्स खाली यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ को, मुझे पता है सब, मैं सब जानता हूँ। ये हर जगह दुनिया में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। जो हाईवेज़ बन रहे हैं, टाउनशिप्स बनते हैं, उसमें फिर एम्यूनिटीज़ देते हैं लोगों को, जो मगर मसला है कि हमारे पास लैंड ही नहीं है, ज़मीन कम है, और हमारे पास उतने बेघर लोग यहाँ नहीं है। यहाँ हाउसिंग ओवरऑल ठीक ही है। हम 1-2 टाउनशिप अगर बोल भी सकते हैं, कहीं कहीं अगर ज़रूरत भी हमें होगी, मल्टीपल स्टोरीज़ की बना सकते हैं, फ्लैट सिस्टम करना। अब हम ज़मीन एक एक कनाल पे मकान ही बना सकते, एक कनाल पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं जिसमें 50 घर आ सकते हैं। वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी होगी, मगर 1,20,000 कनाल ज़मीन हम लाएंगे कहाँ से? दैट मीन्स वी आर वायलेटिंग ऑल द लॉज। देखिए, अगर आपको कश्मीर बचाना है, मैंने पहले भी कहा आपको मॉरेटोरियम लगाना हर किसी मेगा प्रोजेक्ट, यानी कुछ काम नहीं करना, मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको। मैं इतना सोचता हूँ, रात दिन यही हो गया हूँ, क्योंकि मैं इतना डीप इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जगह कहाँ पे खाली है, कैसे होगा, जब वहाँ से रोड बनेगा या हाईवे बनेगी, फिर वो पानी कहाँ से निकलेगा, फिर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर होगा, वाइल्ड लाइफ पे। जब कि मैं देखता हूँ ना ये चीज़ें, मुझे समझ आ रही हैं सब चीज़ें ये, और समझ आने वालों को भी समझ आ रहा है, जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स, मगर वो बात नहीं करते हैं। अब मेरा इतना है कि मैं मुँह फट आदमी बात बोलता हूँ, बोलना ज़रूरी है। तो अगर आपको कश्मीर को बचाना है, जितने भी हमारे बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, खुदा के वास्ते ये सब बंद कीजिए। अगर आप ये चालू रखेंगे, हम मर जाएंगे। फिर क्या आप यहाँ के लोगों को मारना चाहते हैं? यहाँ की गवर्नमेंट से पूछना चाहूँगा, आपको लोगों को मारना है कि बचाना है? हम एक अलग जगह पे रह रहे हैं, ये बाकी जगह नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, ये कश्मीर है जी, कश्मीर है। ये अलग, इसकी टोपोग्राफी है, इसकी लोकेशन अलग है, इसका माहौल अलग है, इसकी ज्योग्राफी अलग है। हम पहाड़ों से गिरे हुए हैं, बीच में एक बाउल की तरह है। आप इसी बाउल में सब अचार भर रहे हो, तो ख़त्म हो जाएंगे हम। ये अचार भरना बंद करो इस बाउल के अंदर। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है
परेशानी हो सकती है, कितनी ज़्यादा मुसीबतें हो सकती है आने वाले वक्त में, इनकी बात से यही अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को जो है बड़े गौर से देखते हैं और इसे बखूबी समझते भी हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि अगर आने वाले वक्त में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, जैसे उन्होंने कहा कि इन्हें बंद कर देना चाहिए, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स और होते रहे तो कश्मीर जो है जैसा अभी भी हमें दिख रहा है ऐसा आने वाले वक्त में देखने को नहीं मिलेगा। रिंग रोड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ज़मीनों को हुआ है, जैसा कि हम सब अब इस बात से वाकिफ़ हैं, और कई सारे लोग जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस हवाले से केस दर्ज किया कि उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिली, उनके जो बाग है उन्हें नुकसान हुआ। ये वाथोरा के रहने वाले हैं, इनका एक बाग है, हाई डेंसिटी बाग है, इनका नाम गुलाम नबी भट्ट है। इन्होंने भी एक केस जो है दर्ज किया है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मसाइल जो है इन्हें पेश आए इस नए रिंग रोड, जो सेमी रिंग रोड है, इसकी वजह से। तो गुलाम नबी साहब, तुम केस तुर्मुत, तुम जमीन गुमुत, गत वन तो कूतः जमीन अत मज तुहुंद युस गो रिंग रोडस मज? मोन जमीन यपार पे अपोर तक मेन रोडस पे 8 कनाल तो 17 मरल, तकरीबन 9 कनाल जमीन। 9 कनाल जमीन। यमो जुत अकई रेट है वाथोरस यिल जन स्टैम्प ड्यूटी रेट 32 लाख, यमो जुत 18 लाख। ये एज कंपेयर करो बाकी गाँवन सत तक दित मोर देन डबल, मगर अगर कस 13 लाख स्टैम्प ड्यूटी रेट तमिस दिख 18 लाख। अच्छा, प्लस 15%। ये वाथोर सो जुलुम कोर, रंग रंग जुलुम कोर, तिकाज वाथोर लिखमुत तहसीलदारन पन्निस रिपोर्टस मज ये बड़ रीजनशल और बसने सड़क पे मेन मतलब योर सा कुपलपुर वर में 55 लाख रुपये मिनिमम तर 55 लाख गए मिनिमम तर, मगर 18 लाख अज दिख 18 लाख प्लस 15%। तम वो 55 लाख गए प्लस गए 15%। तम अलाव तुहद जमीन ये सड़क पे अगर वो बिल्कुल रिंग रोडस लर वनकन तुम बाग तुम वन 9 कनाल तकरीबन गो तुम जमीन रिंग रोडस मज, तथ मुआवजह सह क्या मसल सह बदल दलील। उस वन तुम बाग अत बागस रिंग रोड सत कूतः नुकसान गो? अत गो नुकसान ये बागस गए ये ड्रेनेज सिस्टम यपर तरह। अच्छा, यह कर परस तुम फ्लाई ओवर बनो ना ये आई कर बंद, यह बनो बनो कह पर मेस मज गो आब जमा। अच्छा, परस मेस 2014 मज परस ना ओत्र तमें आब समें फोटोग्राफ दिमो तम फोटोग्राफ तमें आब सो बाग खत्म। ये वारियन दोन आब द्राव क्या ड्रेनेज सिस्टम हाई डेंसिटी बाग तो अम सो गो योर गो आब यमो थो ड्रेनेज सिस्टम कहें, अम सो गो पे लिखान लास्ट चिट लिख मे यह 2 ब्रोट कि 10 दोन अंदर दी तुम कंपनसेशन। अगर तुम दियो बस कर नेशनल ट्रिब्यूनल्स मज NGT NGT कर केस तो तम मे 1 करोड़ रुपये गो मे लॉस 1 करोड़ रुपये गो तुम लॉस। अगर तुम वो ना, अगर तुम वो कि ये वरियस पे कत वन पे बिल्कुल कत वरी गई बनावा एज पर दैट अगर कस कंपनसेशन दिन तमिस वुचान कि अमिस क्या नेरहा कित पे कोता वात वह क्या तुम यसान सरकार क्या कर ना सह गई टोटली नहीं कहें। यह सेटेलाइट कॉलोनी ना यह गई जमीन गई छिन्न अगर तुम वो ना एवरेज लैंड क्या कम एज अगेंस्ट बाग रेस्ट ऑफ इंडिया, लिहाजा सह गई सान खर बेनिफिशियल क्या वन रिप्रेजेंटेटिव हाल ही मज गए इलेक्शन नो MLA या नो चीफ मिनिस्टर MLA साहब समखो तो तमिस MLA साहब अमिस पता MLA साहब बजाय खुद यप लोकल अपार गई बसान तमिस पता कि अम क्या तमिस तुलमुत यह मसल सह तुलान तम मसल। तो उमर साहब समखे तुज एडवाइजर समखे ओतर ग्रुप समखे ओतर जहीर साहब तम तम कह परवाह करो यह मसला करान अंडर दिस लीडरशिप ऑफ मिस्टर राजा मुजफ्फर साहब। तो पकान मतलब कम कर गाम समे ओतर अत बार मे कार्रवाई मसल लास्ट यु कि वन गसन बे छेड़न ये कहें ना कहें सह जुल्म। गोडनदुच अम जमीन गसान खत्म। नंबर 1 ये तूत रोजगार आम नबर कहें कि ये जन पे नव कह बंदोबस्त हेको कर अम नश चलित तो छकित एयरपोर्ट जमीन सह सोरे गवर्नमेंटन तो रे बाईपास द्राव यह द्राय सान जमीन मज वो जमीन सतह तक कम तो अम नबर अम नबर कहें युस कमत वनस जमीन सह कुछ जाए मुजरा अत गवर्नमेंटस खुश गो दितुन
سانہِ چویسہِ پٮ۪ٹھ دِتُن نہٕ کینٛہہ تٔمۍ دیُت پنٛنہِ چویسہِ پٮ۪ٹھ أسۍ دِمو زٔمیٖن اگر اَسہِ زٔمیٖن آسہِ ہا اَسہِ چھُ زٔمیٖن ٹوٹلَس منٛز یُتُے مُلازمت چھےٚ ختم روزگار چھُ سون وٕنکٮ۪س یِہوٚے زٔمیٖن تہٕ وۄنۍ اگر یِم یہِ تہِ نِن تیٚلہِ چھُ اَسہِ وۄتھُن تہٕ نیرُن بیٚیہِ اَمہِ بغٲر چھُنہٕ اَسہِ تیٚلہِ جوابات کٕہٕنۍ تہٕ سٲنۍ ایج چھِ وٕنکٮ۪س مۄکلیمٕژ سٲنۍ ایج چھَنہٕ وٕنکٮ۪س موٚزوٗرۍ کَرنٕچ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ اَسہِ بیٚچنُک صوٗرت بَناوٕنۍ اَمہِ کِس پونٛسَس نیران اَسہِ رٮ۪تھ یا 2 رٮ۪تھ 4 رٮ۪تھ ؤری تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٚچُن سانٮ۪ن بَچَن تہِ پَتہٕ روزُن بیٚچنَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ تہِ روزُن ییٚتہِ حظ چھُ سارنٕے اکھ کنال زٔمیٖن حظ اکھ یا 2 کنال چھِ سارنٕے حظ 3 کنال چھُ ہایَسٹ ییٚتہِ یہِ چھُ گژھان سورُے یہِ گوٚو باے پاسَس تَل رِنٛگ روڈَس تَل اَمہِ نیٚبر چھِ وَنان وۄنۍ ہسا بَناوو أسۍ کالنی وۄنۍ چھُ وَنان 500 میٖٹر تانۍ اَسہِ چھِ 500 میٖٹر تانۍ حظ کالنی ییٚتہِ چھُ سورُے گژھان سٲنۍ مکان یِم تھوٚد اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ کُنہِ جایہِ بَسنہٕ خٲطرٕ جایی أسۍ چھِ وۄنۍ گورنر صٲبَس چیف منسٹر صٲبَس رِکویسٹ کران مہربٲنی کٔرِتھ اگر تُہۍ باے پاسس تل اَسہِ یہِ زٔمیٖن حظ نِیِو باقٕے زٔمیٖن وٕچھِو گاسہٕ چرٲے وٕچھِو تٔتی بَنٲیِو یہِ کالنی حظ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ چھِ اَسہِ یوت حظ کھوٚتمُت اَسہِ دیُت آلریڈی ییٖژاہ قۄربٲنی حظ باقٕے چھُ زٔمیٖن تَتٮ۪ن بَنٲیِو ییٚتٮ۪ن بَنٲیِو تُہۍ سیٹلایٹ یہِ کِہیٖنۍ حظ روزگار چھِ ییٚتہِ چھِ بے روزگٲری حظ واریاہ وٕنکٮ۪ن پیٖکَس پٮ۪ٹھ حظ پٔرِتھ لیکھِتھ بہٕ چھُس پانہٕ وٕنکٮ۪ن MA BEd لٔڑکہٕ حظ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن موٚزوٗرۍ کران پانہٕ حظ مےٚ چھِ MA BEd پانَس حظ وٕنکٮ۪ن بہٕ چھُس پانہٕ وٕنکٮ۪ن موٚزوٗرۍ کران حظ چھِنہٕ کران کِہیٖنۍ زٔمیٖندٲری چھِ کینٛہہ نفر کران باقٕے چھِ سٲری موٚزوٗر پیش موٚزوٗرۍ پیش حظ زٔمیٖندٲری اگر کرو تیٚلہِ اوس اَسہِ زٔمیٖن سٮ۪ٹھاہ اگر أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چلے ہا مگر أسۍ چھِ صُبحس نیران شامَس چھِ یِوان موٚزوٗرۍ دۄہ کٔرِتھ देखो लोगों को काफ़ी खदशात है मगर अभी कोई वाजिया पॉलिसी नहीं है अभी हम ये नहीं बता सके कि ये 1 लाख कनाल पर कॉलोनीज बना रहे हैं इसमें शक नहीं जब से रिंग रोड बन रहा है तो लोगों से कहा गया कि 500 मीटर एक साइड और दूसरे साइड 500 मीटर वहाँ कोई ढांचा नहीं बनना चाहिए तो इसके बाद ये बात सामने आ गई कि शायद वहाँ पर सैटेलाइट टाउनशिप बनने जा रही है गवर्नमेंट मगर मुझे नहीं लगता है ये बहुत ही बड़ा नुकसानदेह होगा इससे सबसे ज़्यादा नुकसान डिस्ट्रिक्ट बडगाम को पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में सबसे ज़्यादा नुकसान चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी पर होता है तो हमने उमर अब्दुल्ला साहब जो कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे बात की हमने कई बड़े ऑफिसर्स से बात की अभी ये वाजिया पॉलिसी नहीं है कोई कि कहाँ पर टाउनशिप बनानी है क्या सारी जो ये लैंड है 1 लाख कनाल से जायद उस पर वो बना रहे हैं या कोई पैच ये ले रहे हैं जब सरकार की तरफ कोई पॉलिसी सामने आएगी कोई ऑर्डर हमें मिलेगा कि कहाँ पर ये बनाने जा रहे हैं इसके लिए सरकार को भी काफ़ी पैसा ज़रूरत है हकीकतन एग्रीकल्चर लैंड है हॉर्टिकल्चर लैंड है तो हमारी तो यही आमदनी है इस एरिया में वेजिटेबल्स बनाते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का एरिया जो है वो बुगाम बटपोरा है तो इसी तरह हॉर्टिकल्चर भी आगे बचरू में या उधर खंदा में तो काफ़ी नुकसानदेह होगा मैंने पहले भी कहा ये काफ़ी नुकसानदेह होगा हमारी कोशिश होगी कि टाउनशिप नहीं बननी चाहिए यहाँ हम कोशिश करेंगे सरकार तक लोगों को जो खदशात है सरकार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि ये न बने कुल मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की बल्कि मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स से बात भी मैंने मिनिस्टर साहिबान से भी बात की इस बारे में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ऐसा न हो जिससे लोगों को नुकसान होगा क्योंकि जब अवामी सरकार वजूद में आती है वो अवाम के लिए होती है तो और मैं फिर भी यही बात को करूँगा कि मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं पर एक कॉलोनी बन जाएगी तो बाकी मुझे नहीं लगता इतनी लैंड पर दाई बाई सारी ज़मीन पर
कॉलोनीज बन जाए बनाने के ख्वाहान है सरकार, मुझे नहीं लगता है। खासकर स्टेट सरकार की मैं बात करूँगा। मरकज़ी सरकार इससे पहले क्या था इरादा, तो वो मुझे पता नहीं है। अभी सरकार भी देख रहे हैं, जो नई सरकार आ गई वजूद में, वो भी देख रहे हैं कि क्या प्लानिंग है ये। तो मेहरबानी करके खुदा के लिए हमें बताइए, सैटेलाइट टाउन्स में किन को बसा रहे हैं? हमारे पास है ही क्या, बचा ही क्या है? अगर हमारा हॉर्टिकल्चर भी खत्म हो जाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी खत्म हो जाता है, तो फिर हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर। और शायद कहीं ना कहीं मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी इनके हाथ में जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, चाहे हमारे हाथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ टूरिज्म पे निर्भर करें, उस पर डिपेंडेंट करें, ताकि जब वो चाहे टूरिस्ट भेजे, जब वो चाहे, ताकि खुदा ना खास्ता जो जम्मू कश्मीर, जो हमारे बाकी स्टेट्स के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क, हमें ज़मीन, हमें सर पे छत दी है, कहीं खुदा ना खास्ता हम भी अल्लाह ताला ना करे भिखारी ना बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि उमर साहब इसकी तरफ खास तवज्जो देंगे और इन सारे जो लोगों के दिल में खदशात है। हमने कई सारे लोगों से बात की जिनकी ज़मीन जो है रिंग रोड में शामिल हुई है और जिनकी ज़मीनों से जो है रिंग रोड निकला है, रिंग रोड बना है, और साथ ही साथ कई सारे वो किसान जिनके जो बाग हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। और उन सब का यही कहना है कि रिंग रोड की वजह से ऑलरेडी हमारी कई सारी जो एकड़ ज़मीन है वो इसमें आ गई है। हम ऑलरेडी जो है नुकसान झेल रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आने वाले वक्त में एक सैटेलाइट कॉलोनी भी बनाई जाए जिसमें हमारी और ज़्यादा ज़मीन जो है वो चली जाएगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ओवरऑल वो हो सकता है आसपास जो इसके लोग रहते हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी नई सरकार है, उससे भी यही चाहते हैं कि वो इसके बारे में एक बार फिर से सोचे जो ये रिंग रोड प्रोजेक्ट बन रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार इस नए प्रोजेक्ट को, जो ये सैटेलाइट कॉलोनीज़ का प्रोजेक्ट है, इसे किस तरीके से देखती है और क्या कुछ नया फ़ैसला जो है वो सामने आता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।